My dear essay writers, today once again in this group of essay we are discussing how to write essay in a more professional way. Basically this workshop is on writing skills, so we will be discussing writing skills from different point of view. Writing is a skill because you do it practically, you do it manually, you do it when your body is involved. That's why it is a physical skill, it is a hard skill, though it is a soft skill because your mind is also involved, but you are doing something when you are writing. That's why it is a skill. Writing is an active skill and it is also a productive skill. So please make a comment that writing is an active skill and it is a productive skill. Writing is an active skill and writing is a productive skill. When you write, so you are active and you also produce something. Yes, thank you for the comments. So writing is productive skill. Active means that you have to do it, like doing, active. It is not passive. Okay, so you have to do things, you have to write. It is writing, it is action. Reading, you are reading, so it is not action. Listening is not action. You are doing nothing and you are listening and you are reading, so there is no action. But in writing there is action. You are writing, you are typing, so that's why it is active skill. And then productive skill means that there's a product at the end, very clear product. Reading, you read. Sometimes there is product, sometimes there is no product. You may read a book, tomorrow you forget everything. So where is the product? Listening. I gave more than 1,000 lectures in this group on essay writing, but you make the same mistakes and then you don't remember what I told you. So listening and reading, these are passive skills and these are receptive skills. There is a benefit when you are listening to me or you are reading something, some benefit is there, but you are just receiving, you are not producing. And the active skill that we have, there is a product. So I hope now I am all right. There was a little buffering, but now it may be smooth and you may be listening to me properly. So the issue is that you give a product. You give a product. After writing, there is a product, and that product is there, which you can see, examiner can see, reader can see, your audience can see. That's why it is complicated. तो राइटिंग के बाद जो है एक चीज बाकायदा एक प्रोडक्ट नजर आता है. वो प्रोडक्ट आपकी रीडर्स देखते हैं, आपकी ऑडियंस देखते हैं, आपके एग्जामिनर देखता है. तो इस वजह से मुश्किल काम है. अब आपने 50 किताबें पढ़ ली, किसी को क्या पता? आपने 50 लेक्चर सुन लिए, किसी को क्या पता? कोई पता नहीं. लेकिन राइटिंग में तो आखिर में एक पैराग्राफ है, सेंटेंस है, एसे है, किसी क्वेश्चन का आंसर है. सो दैट इज अ प्रोडक्ट and that's why it is a productive skill and it is active skills and that's why it is complicated. इंसान जो है वो वॉशरूम में जबरदस्त गा सकता है. इंसान अपनी माँ के साथ बेहतरीन बातें कर सकता है, लेकिन वही इंसान पब्लिक में नहीं कर सकता.
वो जो लोगों का उस पर असर होता है, लोग क्या कहेंगे, एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर इसको मार्क करेगा, इस पे मुझे फेल करेगा, पास करेगा। अब ये जो साइकोलॉजिकल चीजें है, ये बंदे को तबाह बर्बाद करके छोड़ते। हालांकि वही इंसान है, अपने महबूब को जबरदस्त लेटर लिखता है, अपनी डायरी खूबसूरत लिखता है, शायरी करता है, उर्दू में लिखता है, पश्तो में लिखता है, अपनी सराइकी में लिखता है, लेकिन इंग्लिश में लिखना, फिर एग्जामिनर के लिए लिखना, अखबार के लिए लिखना, वो फिर मुश्किल हो जाता है। सिर्फ नफ्सियाती चक्कर है। अगर आप किसी को कहें ना कि यार ये मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, तो फिर वो बंदा बोर्ड हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी पब्लिकली करो, फिर नहीं हो सकता उससे। तो वो साइकोलॉजी इज इन्वॉल्व इन राइटिंग। सो यू हैव टू डिफीट द फियर ऑफ राइटिंग, that let the people see it. If there is any mistake, any error, so it should be corrected, and it is not a problem to make mistakes. अगर आपके जहन में ये चीज बैठ गई कि भाई गलती करना जो है ये कोई फजूल काम नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, गलती करना गलत काम नहीं है, इट इज नॉट ए मिस्टेक टू मेक मिस्टेक। हम देखो ना, नईम यानी एक और कोटेशन बन गया, प्लीज राइट इट, इट इज नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक। ये मेरे विजडम है, जो ये चीजें मुझ पर जो है ना आ जाती है इस वक्त, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड नॉलेज क्रिएशन, कि आप नॉलेज क्रिएट करते हैं। सो इट इज नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक। सो यू कैन मेक मिस्टेक्स। मेकिंग मिस्टेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट डूइंग इज अ प्रॉब्लम, अवॉइडिंग इज अ प्रॉब्लम, hiding is a problem, running away is a problem, not facing is a problem. That is a problem. But making a mistake is not a mistake. Making a mistake is not a mistake. So this is, we have to tell ourselves, remind ourselves that look, I am a writer, there will be mistakes, and I am not a perfectionist. I am a progressive writer. I believe in progress, not in perfection. अब शेक्सपियर के इतने क्रिटिक्स है, इतने क्रिटिक्स है, ठीक है, जिन्होंने एमए इंग्लिश किया है उनको पता है कि मैथ्यू आर्नल्ड और ये लोग जो है, उन्होंने शेक्सपियर की भी शलवार निकाली है कि उसने ये गलती की है तो वो गलती की है। हालांकि शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश का मास्टर है, वो बाबा है इंग्लिश का, उससे बेहतर कौन लिख सकता है। लेकिन उस पर भी लोगों ने तनकीद की है, और वो तनकीद जो है वो बेहतरी के लिए होती है, कि लोग शेक्सपियर को पैगंबर न समझे या शेक्सपियर को कोई वलीउल्लाह न समझे कि भाई इस पे हम बात नहीं कर सकते, ताकि लोग शेक्सपियर पढ़ना काम न समझे और लिखना न छोड़ दे। ये जो यूरोप में डार्क एजेस आए थे, तारीकी का ज़माना, तो उसके दो वजूहात थे। एक था क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, जिसने सब कुछ आसान कर दिया कि ये कायनात किसने पैदा किया है, खुदा ने पैदा किया है, बस तुम आराम से बैठो, इबादत करो, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं है, और मरने के बाद जन्नत जाओगे। तो एक बड़ा आसान सा चीज़ लोगों को दे दिए, तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया। दूसरा जो है अरिस्टोटल, अरस्तु को लोगों ने हर्फ आखिर समझा, पत्थर की लकीर समझा, कि भाई अरस्तु जो है उसने सब कुछ कर दिया है, बस मजीद काम की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से यूरोप जो है वो अंधेरे में चला गया, और इसी वजह से जो मुसलमान दुनिया है या अफ्रीका है या इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो अभी तक अंधेरे में है, डार्क एजेस में है, क्योंकि तनकीद नहीं करते, क्रिटिसिज्म नहीं करते। ला रैब फीही, कि इसमें शक नहीं है जी, अमन्ना वसल्लमना वाताना, मानो, खामोश हो जाओ जी, कुछ न करो, कोई बातचीत न करो, कोई क्वेश्चन न करो, आराम से बैठो, खाना खाओ और सो जाओ और बच्चे पैदा करो। तो इस वजह से फिर तरक्की नहीं होती, देयर इज नो प्रोग्रेस। भाई हमने एक परफेक्ट मॉडल आपको दिया है, सिरात मुस्तकीम दिया है, आपके लिए एक बेहतरीन निज़ाम हमने दिया है, बस इस निज़ाम को समझो और इस पे अमल करो, बाकी तुम्हें किसी और काम करने की जरूरत नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स स्टेगनेंसी, दिस ब्रिंग्स स्टेगनेंसी,
stand still. There is no progress. There is no perfection. कोई चीज परफेक्ट नहीं है. Nothing is perfect. Only progress is required. Continue doing, continue reading, continue listening, continue writing. Don't quit, don't stop. मतलब दो चीजें हैं ना, या तो हम आइडियल चीज चाहते हैं, जी मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तो ठीक है, वरना नहीं, मैं 1 लाख नहीं लूंगा. तो 1 लाख भी नहीं लेता और 10 लाख उसको मिलते नहीं है. तो ज्यादा जो है वो ज्यादा के चक्कर में बंदा भूख से मर जाता है कि मैं जी पराठा खाऊंगा, तो पराठा नहीं मिलता तो फिर बंदा भूख से मर जाता है. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, दैट वट एवर यू कैन राइट यू शुड राइट. यही प्रॉब्लम है राइटर्स में कि वो एक बड़े टॉपिक पे लिखना चाहते हैं. वो जी मैंने 20 पेजेस ऐसे लिखा है, इसको चेक करें. मैं 1 महीने से लगा हूं, एक ऐसे लिख रहा हूं. एक कमेंट नहीं कर सकता, एक सेंटेंस नहीं लिख सकता व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, लेकिन ऐसे पे वो लगा रहता है. ओ जी मैंने डेमोक्रेसी पे, ग्लोबल वार्मिंग पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन वो आम बातचीत नहीं कर सकता, वो 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सकता. तो ये परफेक्शन है. फर्स्ट यू हैव टू गो फ्रॉम सिंपल टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड. फ्रॉम सिंपल टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड. क्या आप फेसबुक में नईम खान के साथ कोई चैटिंग कर सकते हैं? आम अंग्रेजी लिख सकते हैं? उसकी किसी पोस्ट पे कुछ लिख सकते हो? क्या अपने सेफ टू में कोई छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो? क्या जो है किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हो? तो ये छोटा काम आप नहीं कर सकते, तो कल एग्जाम के प्रेशर में आप इतना बड़ा ऐसे कैसे लिखोगे? What is my secret? My secret is that I was writing and speaking everywhere. Small things or big things. So the secret is that you have to start writing anything on simple topics, usual topics, ordinary topics. लोग फेसबुक पे कमेंट करना जो है अपना तौहीन समझते कि जी ये भी कोई राइटिंग है. तो यार ये भी राइटिंग है ना, उसमें भी अब सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस होता है, डेटा होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, वो सारी चीजें होती है. तो आप क्यों नहीं करते? फेसबुक पे सिर्फ अपना सेल्फी क्यों करते हो? कोई अच्छा सा पोस्ट बनाओ, कोई राइटिंग करो. सो द रूल ऑफ पेडागॉजी इज फ्रॉम सिंपल टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड. पेडागॉजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. So according to pedagogy, from simple towards complicated. अगर आप एक कमेंट नहीं कर सकते तो आप इसे नहीं लिख सकते. अगर आप इसी में लगे कि जी मैं इसे लिखूंगा लेकिन मैं कमेंट नहीं करूंगा, so that is a wrong way. You have to start writing on simple topics so that you get encouragement, and then you write on more complicated topics. Now coming to today's workshop, number one thing is when you start, so you start with the impression. Please write it, writing steps. Writing steps. Step number 1 is write with the impressive. Step number 1 is write with impressive sentences. दिस इज स्टेप नंबर 1. जब भी आप लिखना चाहते हैं तो आपके शुरू के जो सेंटेंसेस हैं वो हद से ज्यादा इंप्रेसिव होने चाहिए. सो स्टेप नंबर 1 इज स्टार्ट विद द इंप्रेसिव सेंटेंसेस. नॉट दिस स्टेटमेंट. तुम्हारी दिमाग जो है ना उसमें कोई गड़बड़ है. सो नंबर 1 इज start with the simple sentences, impressive sentences. Now impressive sentence, another name that is hook, as Imran Khan has given, hooks. Impressive sentences को technically hook कहते हैं. Technically impressive sentences are called hooks. तो जब भी आप लिखते हैं तो आपके शुरू के जुमले जो है वो very impressive होनी चाहिए. आज के नोट्स में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी है कि वो हुक्स क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है. सो दिस इज स्टेप नंबर 1.
For example, you are writing on any topic like poverty. तो poverty alleviation आपका टॉपिक है गुर्बत का कमी, कि भाई गुर्बत को हम कैसे कम करें. Poverty alleviation is your topic. तो इस पे आपने स्टार्ट लेना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद इंप्रेसिव सेंटेंसेस. ठीक है, आप इसको एम ही नहीं लिख सकते कि बस जहां से शुरू हो जाए, नहीं. एक तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जो पहला आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है, जब मैं आपको कहता ना मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजो या वीडियो भेजो, तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है मुझ पे कि ये बंदा कितने पानी में है. सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. टॉपिक इज पॉवर्टी एलिविएशन. सो अब इसको कैसे स्टार्ट लोगे, स्टार्ट कहां से लोगे, वो कितना इंप्रेसिव होना चाहिए. So you can say that in 21st century, with the wealth and technology, if someone is poor, that is a stigma on the face of humanity. In 21st century, with knowledge and technology, if someone is poor, it is a stigma on the face of humanity. अब आजकल की दुनिया में जो है कौन गरीब हो सकता है. इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना नॉलेज है, इतना पैसा है, फिर भी बंदा गरीब है. सो इट इज अ स्टिग्मा, ये एक दाग है ऑन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी. तो ये जो है, ये आपका क्या हो गया, इंप्रेसिव सेंटेंस हो गया या हुक हो गया. ठीक है. As Plato says that poverty is the mother of all evils. ये भी है, ये जरा कंफर्म करो कि प्लेटो ने कहा है कि नहीं कहा है. अगर आपको शक है तो आप ये कहे, it is a well known fact that poverty is the root cause of all evils या the mother of all evils. तो ये आपने एक खूबसूरत बात की, इंप्रेसिव बात की. तो ये बातें आपको 3-4 करनी पड़ेंगे. हर पैराग्राफ में यू शुड हैव 10 to 12 सेंटेंसेस. 8, 10, 12 सेंटेंसेस होने चाहिए. इससे छोटा पैराग्राफ नहीं होता है टेक्निकली, लेकिन वो इंप्रेसिव नहीं होता. पैराग्राफ राइटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द राइटिंग स्किल, कि आप एक पैराग्राफ कैसे बनाओगे. तो पैराग्राफ में आपके 8 को कम से कम 10 या 12 सेंटेंसेस होने चाहिए. 8 to 12 sentences in every paragraph. Now, introductory paragraph is also a paragraph. उसमें भी आपके 10, 12, 8 सेंटेंसेस होने चाहिए. तो उसके पहले जो 3-4 सेंटेंसेस है, those are called hooks. वो hooks है. So, number 2 step is give background और history. कि थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में हिस्ट्री आपको देनी चाहिए. हिस्ट्री. तो हिस्ट्री क्या है कि देयर वाज अ टाइम दैट पीपल वर लिविंग इन जंगल्स एंड देयर वाज नो पॉवर्टी इंडेक्स, बट नाउ वी हैव पॉवर्टी क्राइटेरिया दैट दोज पीपल हु आर अर्निंग लेस देन $2 दे आर पुअर. तो ये आपने एक हिस्ट्री का टच दिया कि पुराने जमाने में तो लोग जंगलों में रहते थे. ठीक है. तो ये जो है, उस वक्त तो कोई गुर्बत का पैमाना नहीं था, लेकिन अभी तो गुर्बत का पैमाना है. तो ये थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताई. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमैनिटी वाज फेसिंग पॉवर्टी, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन there was more prosperity, especially in those areas in which there were machinery and scientific inventions. तो ये अपने इंडस्ट्रियल एरा, जो सनती ज़माना है, उसकी तरफ आपने इशारा किया. सो स्टेप नंबर 2 इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री. थोड़ा सा आपने हिस्ट्री में जाना है, टॉपिक को थोड़ा सा हिस्ट्री से लेना है. एंड please write it. Step number 2, background or history. Now step number 3, conclusion of introduction.
conclusion of introduction with one strong, powerful statement, which is also called thesis statement. Thesis statement. So this is step number 2, background. Step number 3, thesis statement. Thesis statement is concluding introduction with a strong, powerful statement called thesis statement. तो ये जो है आपका नंबर 3 स्टेप हो गया, thesis statement. Now usually like 95% writing experts agree that thesis statement is only one statement, only one sentence, and it is the last sentence of the introductory paragraph. तो पूरी दुनिया जो है इसमें मुतफिक है तकरीबन कि जो इंट्रोडक्शन, जो पहला पैराग्राफ है आपकी राइटिंग का, उसका आखिरी जुमला जो है उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, एंड दैट इज कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन. कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन है, और ये एक सेंटेंस होता है. पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, लेंथी, वेल वर्डेड स्टेटमेंट. तो ये एक आम सेंटेंस नहीं होता थीसिस स्टेटमेंट, इसलिए इस वजह इसको थीसिस स्टेटमेंट का नाम दिया गया है कि ये एक लंबा, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग, मजबूत किस्म का बयानिया होता है. तो पॉवर्टी एलिविएशन पे आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है, एक खूबसूरत जुमला आप आखिर में बनाएं. Poverty is a huge challenge to humanity, and there is a need of poverty alleviation with education and technology, and that's why poverty is declared as one of the sustainable development goal by United Nations. तो ये आपने एक खूबसूरत जुमला बनाया और आपने इसको इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया. ठीक है कि पॉवर्टी मस्ट बी एलिविएटेड एंड विद एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिक्लेयर्ड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय यूनाइटेड नेशंस. तो ये आपने खूबसूरत जुमला बना दिया, तो ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है. अगर आपको हुक और बैकग्राउंड और थीसिस स्टेटमेंट का पता ही नहीं है, तुम ना पता हो, आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपके 10 सेंटेंसेस होने चाहिए. अगर इस टेक्निकलिटीज में आप नहीं पढ़ते तो खूबसूरत 10 सेंटेंसेस लिखे. और हमेशा राइटिंग जो है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है. ऑलवेज राइटिंग इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. आपकी हुक्स जनरल होते हैं, नीचे थोड़े से आप स्पेसिफिक हो जाते हैं. थीसिस स्टेटमेंट आपको बहुत वो स्पेसिफिक होता है. तो ये आम बात है, मतलब ये आप देखते हैं ना, जब आप किसी से मिलते हैं इंट्रोडक्शन में तो क्या होता है, आम सी बात है, हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो, आपका नाम क्या है, मौसम कैसा है, घर में खैरियत है, सब ठीक है. आखिर में फिर वो ख़ास चीज़ों पे आ जाती है, यार जी वो हमारे पास तो आटा नहीं है, ओ जी मेरा बेटा बीमार है. और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें बाद में आती है, शुरू में नहीं आती. So this is a basic principle of writing or any expression that you go from general to specific. शुरू में आप स्पेसिफिक बातें नहीं करते, आप जनरल से शुरू करते हैं और फिर आखिर में आप स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, और आखिर में फिर बंदा जनरल हो जाता है. कंक्लूजन इज अगेन जनरल. बॉडी इज वेरी स्पेसिफिक. जो बॉडी पैराग्राफ्स है उसमें बिल्कुल अपने डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस, बिल्कुल आपने वो स्ट्रॉन्ग किस्म के रियल कॉन्क्रीट सॉलिड चीज़ें देनी है बॉडी में. और कंक्लूजन इज अगेन जनरल. अब देखते किसी से मिलते हैं तो दरमियान में, शुरू में आम बातें, दरमियान में ख़ास बातें, और आखिर में फिर हाँ जी यार मैं जा रहा हूँ, बस जी अपना ख्याल रखना, ओके जी फिर मिलते हैं, और सब ठीक ठाक, ओके जी थैंक यू, सलाम कहना, ये करना वो करना. तो वो फिर आम बातें होती है. सो दिस इज द सर्कल ऑफ राइटिंग, जनरल, स्पेसिफिक, जनरल. प्लीज राइट इट. लूप ऑफ राइटिंग. लूप ऑफ राइटिंग, जनरल,
ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिक, बॉडी, अगेन जनरल, कंक्लूजन। तो ये जो वो है त्रिकोण है, जो ट्रायंगल है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, यही चीज जो है ये हर पैराग्राफ में भी है। हर पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ जो है बजाती खुद एक छोटा एसे होता है, और फिर एसे जो होता है वो तमाम पैराग्राफ्स का मजमुआ होता है। अगर आपने एक पैराग्राफ लिखना है उसमें भी वही रूल्स है, जनरल, स्पेसिफिक, और तीसरे स्टेटमेंट भी जनरल किस्म का होता है लेकिन वो कंक्लूजन होता है, सो यू कैन से दैट इट इज आल्सो जनरल। तो जनरल, स्पेसिफिक, जनरल, और इसी तरह पूरा ऐसे जो है वो भी जनरल, स्पेसिफिक, जनरल। सो दिस इज द लूप ऑफ राइटिंग, कि आपने राइटिंग जो है वो कैसे करनी है। नाउ राइटिंग नीड्स टू थिंग्स, rather three things, we can say, call it. Please write it. Writing needs KSA. Writing, like anything in the world, but as we are talking today about writing, so let us apply this on writing. Writing needs KSA. So KSA stands for knowledge, skills and attitude. Knowledge, skills and attitude, ये तीन चीजों में पूरी दुनिया के तमाम राज़े बंद है। Knowledge needs, writing needs knowledge, skills, attitude, KSA. Now knowledge is information or data. क्या आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है कि नहीं है, दिस इज नॉलेज। वो इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, किसी भी जबान में हो सकता है। आपके पास जानकारी है, मालूमात है। सो फॉर दैट यू नीड रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, डिस्कशन, डिबेट्स। तो वो सारी चीजें जो है वो नॉलेज के लिए जरूरी है। नंबर 2 स्किल। आपके पास नॉलेज है लेकिन स्किल क्या है? सो what I told you today, that is skill. अभी तक जितनी बातें मैंने आपको की तो ये सारी क्या है? स्किल्स है, कि भाई राइटिंग एक खास चीज है, एक तरीका है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, हुक है, बैकग्राउंड है, हुक तीसरी स्टेटमेंट है, टॉपिक सेंटेंस है बॉडी पैराग्राफ में, एविडेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, रेफरेंसेस है। तो ये सारे स्किल्स में आते हैं। दीज आर ऑल स्किल्स। एंड अनदर थिंग इज एटीट्यूड। वो जो शुरू में आपको बातें की थी वो एटीट्यूड के बारे में थी। एटीट्यूड इज परमानेंट बिहेवियर। जो इंसान का परमानेंट बिहेवियर होता है उसको एटीट्यूड कहते हैं। बिहेवियर इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एंड स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट इज एग्जिस्टेंस। Behavior is response to stimulus. तो stimulus is any change in environment. Environment is our interaction with existence. तो जब किसी माहौल में हम रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं उसको बिहेवियर कहते हैं। मसलन इस वक्त आग लग जाए तो हमारा बिहेवियर क्या होगा? भागना। लेकिन हमारा परमानेंट बिहेवियर नहीं है, हम हर वक्त नहीं भागते, आग की वजह से भागते हैं। सो दैट इज बिहेवियर। व्हेन इट बिकम्स परमानेंट देन इट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एक बंदे का एक एटीट्यूड होता है ना, कभी एंग्री होता है या स्माइलिंग होता है या वेलकमिंग होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, डिसग्रेसफुल होता है। एक एटीट्यूड इंसान का बन जाता है। जब वो मुख्तलिफ बिहेवियर रिपीट करता है तो उससे से फिर उसका एटीट्यूड बनता है। नाउ एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। क्या आपका राइटिंग का एटीट्यूड है कि नहीं है? क्या आप राइटिंग से डरते हैं? ये जो एटीट्यूड है दिस इज मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये आपके माइंड में है, इसका रियलिटी के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता, ये आप खुद बना लेते हैं। तो राइटिंग के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है?
अब मुझे तो राइटिंग बहुत अच्छा लगता है, मैं तो मरता हूँ राइटिंग के लिए। मैं जब राइटिंग करता हूँ तो मैं इतना ईजी फील करता हूँ। ठीक है ना। आज मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो मेरा पोस्ट है राइटिंग का, उसको पढ़ तो ले, किसी ने नहीं पढ़ा, ना किसी ने उस पर कोई कमेंट किया। मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पे मैंने 2024 के लिए आपको एक गोल दिया है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उस पर मेरा वो राइटिंग स्टाइल तो देखे वो मैंने कैसे राइटिंग की है। तो ये राइटिंग जो है, दिस इज कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स अनबर्डनिंग ऑफ इमोशंस। अनबर्डनिंग ऑफ इमोशंस, अपने जज्बात का इजहार करना, अपने जज्बात का बोझ कम करना। सो राइटिंग इज वन ऑफ द थेराप्यूटिक वेज बाय साइकोलॉजिस्ट्स एंड फिलोसफर्स। राइटिंग जो है ये नफ्सियाती बीमारियों का एक तरीकाकार है, एक इलाज है। जर्नलिंग इसको कहते हैं स्टोइसिज्म में। मार्कस ऑरेलियस जो था, जो स्टोइक एम्परर था, रोमन एम्परर, तो वो जर्नलिंग उसने इंट्रोड्यूस किया कि भाई जब आपको कोई मेंटल परेशानी होती है तो आप लिखाई करें, राइटिंग। तो जो स्टोइक लोग होते हैं वो हमेशा राइटिंग करते हैं। सो राइटिंग इज कैथारसिस, CATHARSIS। कैथारसिस मीन्स अनबर्डनिंग ऑफ इमोशंस। आप जज्बात का आप पे बोझ है और आपके दिल भरा हुआ है और आप परेशान है या बहुत खुश है, तो मैं अपने जज्बात को का बोझ कैसे कम करूं। लोग रोते हैं, हाँ, नहाते हैं, किसी को फोन करते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं आपकी जज्बात के इजहार का। तो उसमें जो एक कैथारसिस है जो आपकी जज्बात को कम कर देता है, मतलब उसका बोझ आपसे हटा देता है, सो दैट इज कॉल्ड राइटिंग। वो राइटिंग है। सो दिस इज योर एटीट्यूड कि राइटिंग के बारे में आपका रवैया क्या है, आप क्या समझते हैं राइटिंग के बारे में। एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, आसान चीज़ है, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आपका राइटिंग के बारे में क्या ख्यालात है। सो दैट इज एटीट्यूड। एंड दिस साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू योर ऑडियंस, योर रीडर्स और एग्जामिनर। कि भाई आपने CSS के लिए राइटिंग करनी है, या आपने KG क्लास के लिए लिखनी है, आप टीचर है KG क्लास का या प्राइमरी स्कूल में, उधर के लिए आपने राइटिंग करनी है, या आपने डॉन में लिखना है, या आपने जो है किसी गांव के अखबार में लिखना है। तो वो इंटेलिजेंट लोग उस चीज को देखते हैं कि भाई सामने मेरा पढ़ने वाला कौन होगा, हु विल बी माई रीडर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड यू चेंज योर वोकेबुलरी, योर ग्रामर एंड योर क्लैरिटी एंड योर क्वालिटी ऑफ राइटिंग। अगर आपने CSS के लिए लिखना है तो फिर तो हाई लेवल राइटिंग, आपने प्राइमरी क्लास के लिए लिखना है तो फिर वो दूसरा क्लास है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हु इज योर ऑडियंस, एंड देन योर ओन राइटिंग स्टाइल। आपका अपना एक स्टाइल बन सकता है लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्किल है, स्किल बगैर प्रैक्टिस का नहीं आता। दैट इज इम्पॉसिबल दैट यू मास्टर अ स्किल विदाउट डूइंग इट, इम्पॉसिबल। ड्राइविंग पे अगर आप 50,000 लेक्चर सुने और 50,000 किताबें पढ़े, आप ड्राइवर नहीं बनोगे, क्योंकि ड्राइविंग जो है वो स्किल है, वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल है, उसको करना पड़ेगा। बड़े बड़े अनपढ़ ड्राइवर होते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते लेकिन ड्राइविंग करते हैं। बड़े बड़े PhD होते हैं कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकते। सो KSA नॉलेज। अब नॉलेज कहां से आएगा, डेटा कहां से आएगा? रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, टॉकिंग टू पीपल, डिबेट्स, डिस्कशंस, इसी से आपके पास नॉलेज, आइडियाज, स्टैटिस्टिक्स वो आएंगे। नॉलेज आ गया, आपका टैंकी भर गया, टैंकी जो है उसमें पानी जो है आ गया, ठीक है। अब टूटी से आपने इसको निकालना है प्रैक्टिस से। यू हैव टू डू प्रैक्टिस बाय राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग, एंड देन राइटिंग मेक्स यू अ राइटर। बड़े लोगों का ये ख्याल है कि जी मैं रीडिंग करूंगा तो मैं राइटर बन जाऊंगा। नहीं, रीडिंग जो है सिर्फ नॉलेज के लिए जरूरी है कि आपकी टैंकी भर जाए। अब एवं तो बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना, कुछ होगा तो, टैंकी में पानी होगा तो टूटी से निकलेगा। तो रीडिंग का सिर्फ एक ये फंक्शन है कि वो आपकी टैंकी को भर देता है,
लेकिन अगर आपकी टूटी बंद है, आपका पाइप टूटा है, आपकी पाइप में जंग लगा है, तो फिर क्या करोगे? तो जंग निकालने के लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस। तो राइटिंग एक अलग चीज है, रीडिंग एक अलग चीज है। रीडिंग से आप राइटर नहीं बन सकते। रीडिंग से आपके पास नॉलेज आ जाता है। अब उस नॉलेज का इजहार करना जो है, दैट इज राइटिंग, एंड दैट इज अ सेपरेट वर्ल्ड, दैट इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. So this was my writing workshop, and I gave you some basics. Now, if you have any question, so please ask. Otherwise, write a short paragraph, and the topic is how to be a writer. How to be a writer. मैं एक लिखारी कैसे बनूंगा, मैं कैसे लिखूंगा. How to be a writer. आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि जी तुम राइटिंग सीखो, राइटर बन जाओ. एग्जाम के लिए आपने राइटिंग करनी है या आपने वैसे राइटिंग करनी है, वो और चीज़ है. लेकिन राइटिंग बजाय खुद एक चीज़ है. आप एग्जाम में भी उसको लिखते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं. सो आई आस्क यू टू बिकम बुक राइटर्स, कि जिंदगी में आगे जाके आप किताबें लिखेंगे. अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं बनते तो राइटर बन जाओ. सो यू कैन नाउ आस्क एनी क्वेश्चन ऑन राइटिंग, on essay writing or any type of writing, and meanwhile write a few sentences on how to be a writer. Let's see. इसमें ग्रामर जरूरी है, स्पेलिंग जरूरी है, पंक्चुएशन जरूरी है. उधर से आप जान नहीं छुड़ा सकते. ग्रामर, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन जो है वो हर जगह जरूरी है. Body paragraphs, I told you that body paragraphs starts with topic sentence and evidence. Body paragraph is made of two things: topic sentence and evidence. Topic sentence is the thesis statement of the body paragraph, but the position of the topic sentence is at the start, while thesis statement is at the end. इंट्रोडक्शन का जो आखिरी जुमला है वो thesis है. बॉडी पैराग्राफ का जो पहला जुमला है वो टॉपिक सेंटेंस है, और उसके बाद आपने एविडेंस देना है, मालूमात देने हैं, तो उसको बॉडी पैराग्राफ कहते हैं. इसको टॉपिक सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि हर पैराग्राफ का अपना एक टॉपिक होता है. मतलब आपने हिस्ट्री के बारे में लिखना है, पॉलिटिकल लिखना है, इकोनॉमिक लिखना है, सोशल लिखना है. तो अगर सोशल आप लिख रहे हैं तो आपका टॉपिक क्या है? सोशल है उसी पैराग्राफ में. मसलन पॉवर्टी की अपनी हिस्ट्री लिखनी है तो ये एक टॉपिक है. पॉवर्टी के अपने कॉजेज लिखने हैं, ये एक और टॉपिक है. पॉवर्टी के अपने सॉल्यूशंस लिखने हैं, ये एक और टॉपिक है. तो सॉल्यूशंस का अपना टॉपिक सेंटेंस है, कॉजेज का अपना है, हिस्ट्री का अपना है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी का अपना है. पॉवर्टी हैज टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. तो ये जो है हर पैराग्राफ में अपनी एक डायमेंशन, एक पहलू पे लिखना है. और उस पहलू जो है, मसलन सोशल एक पहलू है, इकोनॉमिक एक और पहलू है, पॉलिटिकल एक और पहलू है, हिस्टोरिकल एक और पहलू है. तो हर पहलू का, हर एस्पेक्ट का, हर डायमेंशन का जो मेन सेंटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. So you can ask questions as well as how to be a writer. इस क्वेश्चन का जवाब दे दे. अभी मैंने इतना आपको नोट्स दिया आज, और अभी लेक्चर भी दिया. तो अभी इस पे आप मुझे बताएं कि भाई आपने किसी अपने छोटे भाई को कहना है या बहन को कहना है या अपने फ्रेंड को कहना है कि भाई हाउ टू बी अ राइटर. क्या आप उसको पैराग्राफ लिखना है आपने, ये बुलेट पॉइंट्स नहीं. रिमेंबर कि इसे में आप बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 सीरियल नंबर ये नहीं लिख सकते. ऐसे में सिर्फ पैराग्राफ होता है, ओनली पैराग्राफ. कोई मैप्स, कोई टेबल्स नहीं होते. बाकी पेपर्स में आप कर सकते हैं, ऐसे में नहीं.
I told you that when you start from hooks, so hooks are general, background is specific, and thesis statement is general. Introduction paragraph is overall general, body paragraph is specific, and conclusion is general. So this is the flow that you continue. मतलब स्टैटिस्टिक भी आप एज अ हुक यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल शुरू करें, आम तरीके से शुरू करें, पावर्टी का डिफिनीशन दे दे, पावर्टी के बारे में कोई अच्छी सी खूबसूरत जुमले लिखे, तो ये आपका जनरल है. फिर पावर्टी के स्टैटिस्टिक देना, पाकिस्तान में कितनी पावर्टी है, पावर्टी का डिफिनीशन क्या है, पावर्टी जो है वो कहाँ कहाँ है, किस किस कंट्री में ज़्यादा पावर्टी है, वो फिर स्पेसिफिक बातें हैं, फिर ये स्पेशल बातें हैं, डेटा बेस्ड बातें हैं, जनरल बातें नहीं है. आपको मैं एक आसान तरीका राइटर का बताता हूं कि मेरे साथ फेसबुक में एंगेज हो जाए. जहां जहां मेरा पोस्ट आपको नजर आता है उसको पढ़े और उस पर कोई कमेंट करे या कोई क्वेश्चन करे. आप देखोगे कि कितनी जल्दी आप राइटर बनते हैं. मुसीबत यह है कि बंदे कोई खास टॉपिक पे लिखना बड़ा बोर करता है. पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, करंट अफेयर्स, तो ये पैलेस्टाइन, कश्मीर, इस पे लिखना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता. लेकिन आम चीज़ें, हाँ, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, हैप्पीनेस क्या है, और जी इमरान खान क्या है, नवाज शरीफ क्या है, इस पे हम बड़े मज़ेदार लिखते हैं. तो जब आपकी राइटिंग सही हो जाए, आपका ग्रामर सही हो जाए, तो फिर तो ये जो कोर्स के टॉपिक्स है उसके लिए सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है बस. फिर राइटिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ग्रामर आ गया, पंक्चुएशन आ गया, राइटिंग का स्टाइल आपको आ गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक हो गया. आप सिर्फ पढ़ो, एग्जाम में लिखो. दिस इज द शॉर्टकट. If you have any specific problem with writing, so you can also tell me. अब ये जो है ना, मतलब सबसे बड़ी मुसीबत क्या है एग्जाम में या कहीं भी, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यू ब्रिंग योर यू स्टॉप योर ओन कॉन्शियसनेस एंड यू बिकम वन विद द एग्जामिनर. कि आप अपने आप को भूल जाए और आप सिर्फ एग्जामिनर की बात करें. जो एग्जामिनर आपसे चाहता है उसी का जवाब दे दे. बड़े बड़े काबिल लोग मैंने देखे वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टॉपिक पे नहीं लिखते, रेलेवेंट नहीं होते, क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, अपना हांगते, अपना मारते हैं, जो उन्होंने पढ़ा होता है सबको निकाल के उधर डाल लेते हैं. ठीक है. तो ये आप देखें ना कि इसमें जो मैंने आपको बार बार कहता हूं, आप लोग उसको नोट नहीं करते, इस पर अमल भी नहीं करते कि हाउ टू बी अ राइटर, ये हमारा क्वेश्चन है. तो कम से कम ये जो वर्डिंग है ना, हाउ टू बी अ राइटर, ये आपकी राइटिंग में बार बार आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुम रेलेवेंट हो, पर्टिनेंट हो, तुम टॉपिक पे लिख रहे हो. लिखना मकसूद नहीं है, टॉपिक पे लिखना मकसूद है. लिखना मकसूद नहीं है, क्वेश्चन का जवाब देना मकसूद है कि भाई क्वेश्चन क्या है. अब बहुत बड़े अल्लामे हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे जवाब नहीं देते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आप आम किस्म की, मिडिल क्लास किस्म के, लो लेवल के बंदे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन की समझ आती है और क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं, तो आप पास हो जाते हैं. क्योंकि गवर्नमेंट को या किसी भी इदारे को इंटेलिजेंट लोग चाहिए, तेज लोग चाहिए, जो आपकी बात को समझ सके. बहुत ज्यादा प्रोफेसर टाइप या इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल टाइप लोग वो नहीं चलते. तो इमरान खान ने लिखा ना, राइटिंग इज वन ऑफ द सीरियस टास्क्स as the writer must be conscious while writing something that must be grammatically correct. To be an excellent writer, one must be required to have a clear mind as clearly
is clarity of mind is clarity of action. K says the prerequisite to being an excellent writer. तो इसमें आपको ये स्टार्ट से ये लिखना होगा कि how to be a writer is a daunting task. Daunting, complicated task. Okay. If someone want to be a writer, then there are some prerequisites like grammatical accuracy. ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने राइटिंग पे लिखा है. हाउ टू बी अ राइटर का जवाब नहीं दिया है. तो उनका क्वेश्चन जो ये नहीं कि व्हाट इज राइटिंग एंड हाउ टू इंप्रूव राइटिंग, ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन क्या है? हाउ टू बी अ राइटर. पर्सन टारगेट है. अदरवाइज इट इज ओके, एक्सेलेंट. Abdul Ghaffar, how to be a writer? Writing is a one of the daunting task. ये daunting इसने लिख के देखो, daunting task of intellectuals. ये नहीं है ना, राइटर सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स तो नहीं होते ना, आम लोग भी राइटिंग करते हैं, डायरी वाले भी राइटिंग करते हैं, बच्चे भी राइटिंग करते हैं, एग्जाम में लोग राइटिंग करते हैं. तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल राइटिंग करेगा. ये गलत आपने स्टार्ट लिया है. आपने कम से कम वो टॉपिक ऊपर लिखे ना, हाउ टू बी अ राइटर, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है कि यार इसको टॉपिक का पता है कि टॉपिक पे लिख रहा है. फॉर दोज हु वांट टू बिकम राइटर्स, प्लूरल सिंगुलर आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अब्दुल गफ्फार. इधर आपने लिखा है दोज, उधर लिखते हो राइटर. अच्छा, छोटे छोटे जुमले मत लिखा करें. आज के नोट्स में मैंने आपको दिया है वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस. खूबसूरत नोट्स है आज के, पढ़ लीजिए. वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस. देखिए इतना छोटा सा जुमला आपने आखिर में लिखा है, इट इज ए लॉन्ग जर्नी. तो इसको पहले वाले के साथ मिला दो. फॉर दोज हु वांट टू बिकम राइटर्स. अब यहां कोई कामा लगाओ यार, कामा भी नहीं है. इट इज ए कंप्लीट पैकेज. दे हैव टू फॉलो इट एंड दे हैव टू फॉलो इट because it is a long journey. तो ये पीसेस में छोटा छोटा लिखना जो है ये भी ठीक नहीं है. थोड़ा सा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव करो. बाकी ठीक है, मतलब बहुत बुरा बिल्कुल नहीं है. It is true that writing is a skill, but it also needs knowledge. There is no skill which can be learned without doing it. So to master writing, one has to write something and do practice. One has to write something and do practice. ठीक है. As there is a well-known statement that practice makes a man perfect. With skills, writing also requires knowledge to write about. ठीक है, हारिस हयात खान, ठीक है. इसी को जो है ना खूबसूरत बना के सेफ 2 में भी लिखो और अपनी फेसबुक पे भी डालो. अपना फेसबुक जो है ना, इस पे लोगों को फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये बंदा जो है ये वो है राइटर टाइप है, इंटेलेक्चुअल टाइप है, तो आपसे पंगे नहीं लेगा. आपके फजूल कामों में अपना इंप्रेशन ऐसे बनाओ कि नहीं जी मुझे तो नॉलेज के साथ शौक है, CSS के साथ शौक है, मैं ये चीज़ों को हूँ ही नहीं उन चीज़ों में. तो इस कमेंट को यहाँ से कॉपी करके अपने फेसबुक पे भी डालो, मजीद इंप्रूव करो और सेफ 2 में भी डालो. लोगों पे अपना इंप्रेशन ऐसा बनाओ कि वो आपके साथ थर्ड क्लास बातें न करे, आपसे दूर भागे. Sir, most of the time I face the vocabulary lessness issue. लेसनेस की जगह पॉसिटी लिखे, डेफिशिएंसी लिखे. vocabulary deficiency. I know the word but don't have a suitable synonym to match the idea I want to add to my statement. तो यार मैंने इस सेफ, प्रेसी एंड कंपोजिशन ग्रुप में 2-3 दिन जो है आपको vocabulary पढ़ाया, synonyms पढ़ाए. एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में एक चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट.
और उसमें बहुत से वोकैबुलरी के बारे में बड़े बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के पहले 9, 10, 11 चैप्टर ज़रूर पढ़े। आगे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सेफ 5, सेफ, प्रेसी एंड कंपोजिशन। क्योंकि ये आपको जो प्रॉब्लम है, ये इसके लिए आपको प्लानिंग करके इस पर काम करना होगा, शॉर्टकट इसका नहीं है। Saeed, what is a skill and one writing is a skill and one can learn it by practice. It is impossible to become a writer without doing writing. People generally think that from reading and listening, following these steps, one can easily become an impressive writer. An impressive. An, A नहीं, बाकी ठीक है। How to be a writer. अब ये एक टॉपिक है मुजीबुर रहमान, तो या तो सवालिया निशान लगाओ या फुल स्टॉप भी हटा दो। टाइटल में हम पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है, फुल स्टॉप तो बिल्कुल नहीं आता। पंक्चुएशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेफ 5 में मैंने आपको इस महीने में पंक्चुएशन पे लेक्चर दिए है, नोट्स भी दिए हैं। पंक्चुएशन, it is well known fact that writing is a skill like other skills such as swimming, riding and driving, as we know. हाँ, we मत लगा करो, as it is known। पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल इस्तेमाल ना करो एकेडमिक राइटिंग में। पर्सनल राइटिंग में ठीक है, लेकिन एकेडमिक राइटिंग कोई जनरल होता है तो उसमें आप पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। एज वी नो की जगह एज इट इज नोन। एज इट इज नोन, राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल। Furthermore, first and foremost thing for writing is to get knowledge and do practice. Moreover, if someone wants to be a writer, he needs to be conscious and vigilant. बिल्कुल ठीक है, आपकी राइटिंग ज़बरदस्त है। ये जो आपने लिखा है ना, furthermore, first and foremost thing, ये इसको कहते हैं ट्रांजिशन, फ्लो। अपनी राइटिंग में फ्लो डालना। आज के नोट्स में ये भी है, और इस पर मैंने बहुत से लेक्चर दिए हैं, how to become fluent in writing. So thank you guys for your participation. It was a successful workshop and I'm happy that you participated, everybody, and I hope that I have not missed anybody's comment. So thank you very much and start writing. मैंने आपको जो तरीका बताया कि मेरे पोस्टों पे लिखाई करें ताकि आप राइटर आप बन जाए। एक दफा आप राइटर बन गए, सिर्फ फिर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बस नॉलेज आपको लेना होगा। स्किल आपके पास आ गया, आपके पास सिर्फ नॉलेज रह जाएगा तो फिर पढ़ो, नॉलेज आ जाएगा। लिसनिंग करो, मुझे सुनो, किसी और को सुनो, यूट्यूब को सुनो, रीडिंग करो, लेकिन स्किल से निकल जाओ। मतलब आपकी जो सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर है, स्पेलिंग्स है, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, इससे सिंपल राइटिंग से इस स्टेज को कवर करो। जैसे आपके पास नॉलेज आता है तो फिर आप लिख सकते हैं। अब उर्दू आप देखिए, उर्दू में अगर आपके पास नॉलेज है तो लिखना आपका प्रॉब्लम नहीं है, या आप जो भी आपका जबान है, ठीक है ना। आप उर्दू में अगर आपके पास नॉलेज है गुर्बत के बारे में तो कम से कम आप लिख तो सकते हैं ना। गुर्बत क्या है, गुर्बत की जो है वजूहात क्या है, हल क्या है, और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास ये इल्म है तो फिर आप लिख सकते। उर्दू लिखना आपका प्रॉब्लम नहीं है, इल्म आपका प्रॉब्लम है। इंग्लिश में ये मुसीबत है कि इंग्लिश का राइटिंग जो है ये मुश्किल है। सो फॉर दैट यू हैव टू बी जस्ट राइटर्स। किसी भी चीज़ पे लिखो आप, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई कंट्री, माई टाउन, माई विलेज, छोड़ो लंबे लंबे टॉपिक्स को। एक दफ़ा राइटर बन जाओगे, आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि फिर सिर्फ किताब पढ़ो, नॉलेज डेटा ले लो, स्टैटिस्टिक ले लो, एब्जॉर्ब करो। राइटर तो आप पहले से है, तो आसान टॉपिक्स पे लिखा करें। मेरे फेसबुक के कमेंट्स और पोस्टों पे लिखा करें ताकि आप राइटर कम से कम बन जाए, बस। उसके बाद नॉलेज आता रहेगा, और नॉलेज का कोई लिमिट भी नहीं है। इतना नॉलेज है दुनिया में कि बंदा किस किस चीज़ को जानेगा। कम से कम अपना सिलेबस बंदे फिर कवर करे, एंड दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।